Hello, good morning student. Today we are going to start our new chapter, that is a reflection of light. That is a refraction of light, which is related to the light. Yes, okay. Because in previous standard we have learned about the light, their properties, and we have carried the different kind of these experimental activities also there in previous standard. Yes, so we have going details here about the property of light, because refraction of light is one property of a light here, and we have learn more here about this property by carrying some experimental activity in this lesson. So we have start about this refraction of a light here. So we have introduced our lesson. Now this is the introductory point of this lesson, that is today's period. Actually in this introductory account of this lesson, we have learned here content of this lesson. Which parts we have learned here? One is a reflection of light, another is a law of refraction, next is a refractive index, and last point is a dispersion of light. And we have gets the more account about these dealing points. So we have let us to start our introductory account of this lesson, only introduction. Now in this period we have learned here. So in that introductory account we have arising some question and try to recall its. Which questions are arising here? Number one, what is meant by reflection of light? And another is what are the law of reflection? We have tried to answer it. Actually, in previous standard we have learned one experiment. Yes, I have tried to show in this picture. That experiment we have learned here, that is a 3 cardboard experiment and torch. डू यू रिमेंबर इट? देखिए बेटा, हमने 3 कार्डबोर्ड वाला एक एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन किया था. वो 3 कार्डबोर्ड हमने सेम साइज के लिए थे. उसके बीचों बीच हमने एक क्या किया था? वी हैव पिन्ड देयर, वी हैव मेक अ होल देयर, यस, एट अ सेंटर, एंड वी हैव पुटेड दिस 3 कार्डबोर्ड as shown in a figure on a surface of a table. Yes, horizontally we have putted it, yes, in front of with each other, yes, in a single line, in a single series. Yes, okay, and we have enlit the torch here, and after the enlighting torch, that is a spreading light, means the lights are the spread here, lights are the travel here. This is a source of light. This is actually torch is a source of light, and that light emits, yes, and it passes, yes, it's travel through the hole, and we have obtained on the screen, yes, there is a emitting light point there, and by this experiment we have get conclude there, light travel in a straight line, light travel in a straight line. एक्चुअली देखिए बेटा, तो लाइट हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? ट्रैवल करते हुए दिखाई देती है. अगेन वी लर्न्स इफ एन एनी ओपेक ऑब्जेक्ट, ये देखिए ओपेक, यहाँ पे दूसरी वाली फिगर देखिए. यस, यहाँ पे 2 फ्रेंड्स हैं. एक फ्रेंड के हाथ में टॉर्च है, दूसरा फ्रेंड यहाँ पे सामने खड़ा वाला है ना. टॉर्च जिसके हाथ में है वो फ्रेंड क्या करता है? वो टॉर्च को ऐसे ऑन कर लेता है, और जैसे टॉर्च ऑन होती है तो टॉर्च में जैसे ऑन होती है तो लाइट यहाँ पे ओरिजिन होता है ना. अभी इस लाइट ओरिजिन होते हुए, इमिट होते हुए, इसके लाइट के बीच में ही ये यहाँ पे फ्रेंड खड़ा हो जाता है, और जैसे फ्रेंड लाइट के बीचों बीच खड़ा होता है तो फ्रेंड की इमेज यहाँ पे मुझे वॉल के ऊपर बनते हुए दिखाई देती है. दैट इज अ शैडो. हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? शैडो फॉर्मेशन, है ना. ये भी हमने यहाँ पे 7th स्टैंडर्ड में लर्न किया था. एक्चुअली शैडो क्यों बन रही है बेटा? क्योंकि, हाँ, कोई बता सकता है? क्योंकि कोई भी जैसे इमेज या लाइट ट्रैवल होती है, लाइट ट्रैवल होती है ओरिजिन की
पॉइंट से, और जैसे वो ट्रैवल होते हुए उस लाइट के बीचों बीच, जैसे कोई भी ओपेक यानी कि अपारदर्शक, ओपेक यानी कि अपारदर्शक ऑब्जेक्ट जब आएगा तो यहाँ पे लाइट क्या होगी, यहाँ पे स्टॉप होगी, डिस्टर्ब होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमें उसकी एक इमेज बनती हुई दिखाई देती है, शैडो बनते हुए दिखाई देता है। हम इसको आमरा पेनामरा ऐसे भी बोलते थे। जैसे हमने अलग अलग, जो सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो इसी का ही एक रूप यहाँ पे हमें दिखाई देता है। यस, इट इज वन ऑल्सो वन काइंड ऑफ दिस फिनोमेनन। समझ में आ रहा है बेटा? तो देखिए, तो ये हमें मिल रहा है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट लाइज इन द पाथ ऑफ द ट्रैवलिंग, जस्ट ट्रैवलिंग लाइट्स, है ना। ये ट्रैवलिंग लाइट का जो पाथ है, इसमें जैसे ये ओपेक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाइव होगा तो क्या होगा बेटा, हमें शैडो बनती हुई दिखाई देगी। यस, ओके। एंड वी हैव आल्सो सीन द प्रीवियस क्लास, अपने 7th क्लास में हमने ये देखा है। समझ में आ रहा है? दिस शैडो चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सोर्सेस ऑफ लाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमने यहाँ पे लर्न किया है। एक्चुअली देखिए बेटा, ये दूसरा वाला पिक्चर यहाँ पे है ना, दिस इज आवर मदर अर्थ, दिस इज अ सन। जस्ट एक्चुअली सन इमिट्स द लाइट हियर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। क्योंकि यही हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने लर्न किया था, है ना, पिछले स्टैंडर्ड में इसको ऐसे बोला था, यस सनलाइट इज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इट इज अ कॉज ऑफ, यस इट इज अ कॉज ऑफ सेंस टू विजन, सेंस टू विजन, है ना। तो देखिए ये लर्न किया था, अभी इसको यहाँ पे हमें देखना नहीं, केवल यहाँ पे हमें एक ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेनी है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में। एक्चुअली यहाँ पे देखिए बेटा, दूसरे वाले फिगर दिए वाले, है ना, इस फिगर में एक्चुअली यहाँ पे एक बच्ची खड़ी है, अभी वो सामने विंडो के सामने खड़े होकर बाहर का जो दृश्य है, एनवायरमेंट्स है, उसको देख रही है ना बेटा। एक्चुअली देखिए यहाँ पे विंडो में से लाइट्स इमिट्स होते हैं, और जैसे लाइट इमिट होता है तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जैसे कि उसको ऑब्जेक्ट यहाँ पे विजुअलाइज होते हैं, और जैसे विजुअलाइज होते हैं, है ना, तो यहाँ पे देखिए बाहर का जो सुंदर ऐसा दृश्य है वो दिखाई देता है, और ये पॉसिबल केवल यहाँ पे यह लाइट के कारण ही होता है ना बेटा। अभी यहाँ पे एक्चुअली जो ग्लास है, तो ग्लास कैसे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, एंड ड्यू टू दैट हैविंग द ट्रांसपेरेंट, अभी ये यहाँ पे ये जो फ्रेंड था बीचों बीच खड़ा वाला, तो ये फ्रेंड्स कैसे है, इसकी बॉडी जैसे ट्रांसपेरेंट नहीं थी, है ना बेटा, दैट इज नॉन ट्रांसपेरेंट थी, है ना। तो यहाँ पे ये शैडो क्या हो रही बन रही है ना, क्योंकि यहाँ पे जो पाथ है, पाथ ऑफ दैट लाइट, यस, एंड डिस्टर्ब द ओपेक ऑब्जेक्ट, इस पाथ को क्या कहते हैं, यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पे ये ग्लास होने के कारण, ये और ट्रांसपेरेंट होने के कारण यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। यस, वी हैव, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पारेशन, है ना, ट्रांसपेरेंट, है ना। तो यहाँ पे पारेषित होती है लाइट। अभी बाजू का जो सामने वाला जो दृश्य है हमें सही तरह से वहां पे दिखाई देता है। अभी यहाँ पे देखिए बेटा, दूसरा वाला एक यहाँ पे इमेज या चित्र दिया है, इस चित्र में एक बच्चा मिरर में देख रहा है। एक्चुअली देखिए बेटा, ग्लास एंड मिरर दोज आर द टोटली डिफरेंट, है ना। ग्लास कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट, है ना, ग्लास में हमें इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है नहीं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे देखिए बेटा, इस मिरर में इस बच्चे की इमेज दिखाई दे रही है, इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देती है। ये क्यों पॉसिबल है, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, एंड यहाँ भी रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट के कारण, अभी यहाँ पे एक ग्लास है, लेकिन ग्लास का क्या होता है बेटा, जो वो बाहर वाला जो सरफेस होता है ना, सामने वाला सरफेस होता है, वो रिफ्लेक्टिव होता है, रिफ्लेक्टिव होता है, और उसके पीछे का जो सरफेस होता है, सेम अपोजिट सरफेस इज नॉन रिफ्रैक्टिव होता है। चलिए, तो यहाँ पे हमें इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है बेटा, एंड दिस इज अ कॉज ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दिस इज अ कॉज ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए बेटा, यहाँ पे हमें कुछ ऐसे जजमेंट दिखाई दे रहा है। अब ये जो जजमेंट हमने यहाँ पे लर्न किया है, चलिए अभी इसी जजमेंट को लेकर हमने जो यहाँ पे लर्न किया है, अभी इसको थोड़ा सा डिटेल देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा एक एनिमेशन इफेक्ट यहाँ पे प्ले करेंगे। अभी देखिए बेटा, इस एनिमेशन इफेक्ट में हमें पता चलेगा, क्या पता चलेगा, कि लाइट ये कैसे रिफ्लेक्ट होती है। हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए, तो यहाँ पे एक
सैंपल वीडियो है, हम इसको लर्न करेंगे। देखिए, ऑन द टेबल आई हैव अरेंज वन मिरर, ऑन द टेबल आई हैव अरेंज वन मिरर, यस इट्स पुट इन हॉरिजेंटली। चलिए मैंने यहाँ पे हॉरिजेंटली इसको अरेंज किया है। आगे आई हैव लर्न हियर, आई हैव ट्राई टू शो रिफ्लेक्शन, मैंने यहाँ पे, मुझे यहाँ पे क्या देना है तुम्हें, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज, चलिए बेटा, व्हेन द लाइट रे, देखिए यहाँ पे एक टॉर्च है, लाइट रेज, यस दैट इज अ स्टिक द बाउंड, दैट इज अ बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। अब यहाँ पे टू मीडिया, अब यहाँ पे मीडिया जैसे कि एयर मीडिया है, जैसे कि ग्लास, अब यहाँ पे बाउंड्रीज of two media such as air and glass, such as air and glass, a part of light is turned back into the same medium, this is called a reflection of light, yes। और एक सिंपल भाषा में हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बाउंसिंग ऑफ द लाइट, बाउंसिंग। अभी देखिए लाइट यहाँ पे ऐसे हम इमिट करें, लेकिन इमिट करते हुए यहाँ पे इमिटिंग पॉइंट बनकर यहाँ पे लाइट यहाँ पे बाउंस होती है, दैट इज अ बाउंसिंग ऑफ लाइट, यस इट इज ऑल्सो सिंपल डेफिनेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बाउंसिंग जब होता है तो यहाँ पे मीडिया दिखाई दे रहा है ना, देखिए बेटा ये जो मीडिया अलग है दैट इज एयर, है ना, दैट इज अ ग्लास मीडियम, यस एट दैट पॉइंट, yes we have get the one reflecting point, and from that reflecting point again we have get the another rays, yes okay it's bounce in opposite side, it bounce in opposite side, बाउंसिंग हो रहा है लेकिन कैसा हो रहा है बेटा, अपोजिट साइड, यस विद द सेम एंगल, अपोजिट साइड विद द सेम एंगल। चलिए हमने ये पहले स्टैंडर्ड में लर्न किया है ना, याद आ रहा है। चलिए थोड़ा सा ट्रेस कीजिए माइंड को अपने और याद कीजिए, हमने इसको लर्न किया था पहले, है ना बेटा। अभी देखिए, तो ये हमने यहाँ पे लर्न किया है। एक्चुअली अभी ये जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे याद की, चलिए हमने याद की है क्योंकि लर्न किया था पहले, रिकॉल किया है केवल। चलिए बेटा, ये अभी यहाँ पे देखिए बेटा, हाईली बोले तो बहुत पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए, दैट इज अ रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। अभी यहाँ पे टॉर्च इमिट होती है तो यह भी एक ही प्लेन है, एक ही प्लेन में हमें यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, तो देखिए ध्यान दीजिए, एक ही प्लेन में हम यहाँ पे क्या क्या लर्न करें बेटा, एक ही प्लेन में यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमें पता चल रही है, एक मिल रहा है यहाँ पे इमिटिंग रे मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है रिफ्लेक्टिंग रे मिल रहा है, और एक मिल रहा है नॉर्मल मिल रहा है। देखिए बेटा हमने 8 में इसको लर्न किया था, हाँ याद आ रहा है। चलिए दैट इज अ, देखिए हमने यहाँ पे इसको लर्न करने के लिए एक टॉर्च लिया है और एक हाईली प्लेन्ड सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिव है वो, कैसा है वो, रिफ्लेक्टिव है। चलिए अभी इसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, टॉर्च के द्वारा एक लाइट को इमिट करेंगे, दैट इज इंसिडेंट रे, दैट इज इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर। अभी देखिए नॉर्मल टू द मिरर, अभी नॉर्मल क्यों बताएं, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है ना, दैट इज द इंसिडेंट पॉइंट जो मिल रहा है, उसी पॉइंट को हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, नॉर्मल, दैट इज वी हैव गेट द नॉर्मल is to the mirror at the point of the incident, ये देखिए at the point of the incident point, just okay, and the reflected ray इस यहाँ पे ये जो अपोज में बन रहा है, देखिए अपोजिंग बाउंस हो रहा है यहाँ पे, दैट इज वन है वो रिफ्लेक्टेड रे, ऑल इन दिस सेम प्लेन, ये जो तीनों ही हमें यहाँ पे सेम प्लेन में दिखाई दे रहे, पता आ गया समझ में। चलिए बेटा हमने ये लर्न किया था, याद आ रहा है तुम्हें, पिछले वाले स्टैंडर्ड में हमने इसको लर्न किया था। चलिए बेटा, और इसके साथ हमने यहाँ पे ये भी देखा था, चलिए बेटा ये एनिमेशन इफेक्ट के द्वारा मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। एक्चुअली अभी जो मिलता है, दिस लॉ ऑफ दिस एप्लीकेबल यस ऑल द टाइप ऑफ द रिफ्लेक्शन सरफेस, ये जो लॉ होता है ऑल टाइप ऑफ द रिफ्लेक्शन सरफेस के लिए मिलता है। अभी देखिए टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरह से मिलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्लेन यहाँ पे कैसा होना चाहिए, हाईली यस रिफ्लेक्टिव होना चाहिए और सेम होना चाहिए, है ना बेटा, स्मूथ होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। यहाँ पे अभी ये देखिए मैंने बुक रख दिया है, तो बुक का जो प्लेन है तो यहाँ पे कैसा है बेटा, स्मूथ नहीं रफ होता है, तो यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टिंग रे एंड दैट इज अ इमिटिंग रे एंड द रिफ्लेक्टिंग रे, यहाँ पे कैसे मिले, इरेगुलर मिल रहे। अभी देखिए दूसरा वाला मैंने यहाँ पे एक मिरर रख दिया है, दिस इज इंसिडेंट रे, अगेन
वी हैव गेट इंसिडेंट पॉइंट। अभी देखिए यहाँ पे इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ध्यान दीजिए बेटा यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हियर एंड दिस इज इंसिडेंट रे हियर। अगेन वी हैव गेट द रिफ्लेक्टेड रे। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए ऐसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें दिखाई देते हैं। यस दिस इज वन हाउ सिंपली यू हैव गेट इट। देखिए यहाँ पे हमें इंसिडेंट रे मिल रहा है, नॉर्मल मिल रहा है और रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है ना बेटा। इंसिडेंट पॉइंट्स को लेकर यहाँ पे नॉर्मल बनता है। अभी जो इंसिडेंट एंगल होता है, यस इज इंडिकेटेड एज अ आई, है ना। इंसिडेंट एंगल टू नॉर्मल, टू द नॉर्मल, और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग एंगल है ना टू द नॉर्मल। चलिए, तो इंसिडेंट एंगल होता है तो आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और द रिफ्लेक्टिंग एंगल जो होता है आर से इंडिकेट किया जाता है, स्मॉल आर से। चलिए बेटा, तो ये हमने यहाँ पे इस पढ़ा था, याद आ रहा है ना तुम्हें। चलिए अभी हम इसी को लेकर, अभी ये जो समझ में आ गया ना, देखिए यहाँ पे मीनिंग समझ में आ गया, व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था ना, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देयर। चलिए, तो ये हमने यहाँ पे लर्न किया। अगेन वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। यस, इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव लर्न हियर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। चलिए, the incident ray, the reflected ray, yes we have learned in our previous animation effect, and the normal to the surface of the mirror or lies in a same plane। ये जो होते हैं ना एक ही प्लेन में दिखाई दे रहे हैं। देखिए बेटा यहाँ पे दिखा दिया है ना, दिस इज इंसिडेंट रे, yes this is a reflecting ray and normal are lies in a same plane, है ना। अभी देखिए, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, बोथ एंगल आर मेजर्ड विद द रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। ये नॉर्मल को लेकर ही इसको, इंसिडेंट एंगल को मेजर किया जाता है, नॉर्मल को लेकर ही रिफ्लेक्टिव एंगल को यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, मेजर करते हैं, है ना। तो इसमें हमने लर्न किया था। यस ओके, एक्चुअली यहाँ पे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम यहाँ पे देखेंगे बेटा। तो यहाँ पे देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद कीजिए, हमने लर्न किया था 8th स्टैंडर्ड में, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट्स ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यस, ये भी हमने याद किया था, है ना। याद कर रहे हैं, अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस चैप्टर को। देखिए बेटा, चलिए, और वी हैव ऑलरेडी लर्न इन आवर प्रीवियस स्टैंडर्ड, यस दैट इज इन 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड में हम इसको लर्न किया है। एंड द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई आइदर साइड द नॉर्मल, यस लाई आइदर साइड, है ना बेटा, अपोजिट साइड में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो ये हमने यहाँ पे लर्न किया था। एक्चुअली वी हैव गो टू यस आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस introductions of the refraction of light. Yes, we have carried here the two simple experiment, two simple experiment। देखिए बेटा, हम यहाँ पे अभी 2 एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन करेंगे, दैट इज एक्टिविटी फर्स्ट एंड एक्टिविटी सेकंड ईयर। चलिए देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने 2 एक्टिविटी अपने सामने रख दी है। पहली वाली एक्टिविटी जो है, इसमें एक हमने क्या लिया बेटा, एक ग्लास का टब लिया है ना, ग्लास टब विथ consisting the water, yes, and I have put one pencil as shown in figure. The pencil position is having an inclining there, yes okay, we have, can you observe it। देखिए मैंने यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया है। अभी देखिए दूसरी वाली जो एक्टिविटी ये यहाँ पे दिखा है, इसमें हमने 2 क्या लिए बेटा, ग्लास के बीकर है ना, और उसमें हमने कॉइन लिया है 5 रुपये को कॉइन्स। ठीक है, अभी देखिए इसको लेकर हम अभी कुछ बातें, उसको हम क्या करेंगे, अभी रिकॉल करने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए, हम अभी केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है। यस, आने वाली पीरियड में हम डिटेल्स इस चैप्टर को लर्न करेंगे। चलिए बेटा, अभी देखिए इसमें हमें क्या पता चलता है इस एक्टिविटी से। चलिए, हमने यहाँ पे क्या किया था, टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास फिल्ड विद वाटर। देखिए ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया है और पानी से उसको भर लिया है। डिप द सम पोर्शन ऑफ द वर्टिकली पेंसिल एज शोन इन फिगर। वर्टिकली देखिए पेंसिल हमने वर्टिकली रख दी है, लेकिन पेंसिल का सम पोर्शन, कुछ ही भाग
हम पानी में उसको क्या करना है, उसको एम्बेड करना है। एंड ऑब्जर्व द थिकनेस ऑफ द पोजिशन ऑफ द पेंसिल इन वाटर, इसको ऑब्जर्व कीजिए बेटा और यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करना है। चलिए जो पानी में जो पोर्शन है पेंसिल का, है ना, पार्शियली पार्शियली, है ना, अभी ये जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा बेंड दिखाई देता है, एक्चुअली उसकी विड्थ भी थोड़ी सी चेंज होती हुई दिखाई देती है ना। और यहाँ पे मीडिया चेंज हो रहा है, देखिए बेटा जो अबव वाटर है दैट्स एयर मीडियम, और जो पेंसिल का पार्शियली हिस्सा है ना जो पानी में है वो कैसा, कौन से मीडियम में, दैट इज वाटर मीडियम, मीन्स द मीडियम वी हैव गेट द चेंजेस, yes, and after the changing the medium we have get the, yes, somewhat positions also goes there differ here, yes, we have feel it, है ना, ऐसा हमें यहाँ पे महसूस होता है। लेकिन पूरी जब पेंसिल हम जैसे बाजू में हम ड्रॉ करेंगे, उसको टेकआउट करेंगे तो क्या मिलेगा, पेंसिल सेम ही दिखाई देगी, है ना, सेम ही साइज दिखाई देगी। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जैसे पानी में एक आधा हिस्सा पेंसिल का पानी में है और आधा हिस्सा हवा में हो, तो यहाँ पे पेंसिल थोड़ी सी बेंड होती ही दिखाई दे रही है। जो पानी में हिस्सा है, पानी के सरफेस को लेकर जो बॉटम की तरफ जाने वाला हिस्सा हमें बेंड होते हुए दिखाई दे रहा है, और उसके विड्थ में कुछ बदलाव आते हुए दिखाई देता है। तो ये इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है। अभी चलिए बेटा दूसरी एक्टिविटी यही यहाँ पे दी वाली है। अब ये क्या करना है, तो ये एक्टिविटी हमें फ्रेंड के साथ करनी है, अपने फ्रेंड को लेना है और उसी के साथ ये एक्टिविटी फॉलो करनी है। चलिए एक हम क्या करेंगे बेटा, टेबल चूज करेंगे, उस टेबल के ऊपर एक बीकर रखेंगे, बीकर में 5 रुपये का कॉइन हम उसमें पुटअप करेंगे, और उसी कॉइन को देखते हुए, उसी कॉइन को देखते हुए अपनी नज़र न हटाते हुए उसी कॉइन को देखते हुए हमें पीछे चलना है। और कब तक पीछे चलना है, जब तक हमें कॉइन न दिखाई दे, कॉइन दिखना बंद हो, उसी पॉइंट के ऊपर वहाँ पे हमें स्टे होना है या स्टेबल होना है, खड़े होना है वहाँ पे, और अपने फ्रेंड को कहना है अभी बीकर में पानी डालो। अभी वो फ्रेंड क्या करेगा, बीकर में पानी पोर करेगा या पानी पुटअप करेगा, और जैसे ही पानी ऐड करेगा बीकर में, तो हमें उसी जिस पॉइंट के ऊपर हम खड़े थे, जिस पॉइंट के ऊपर हम खड़े थे वहां से हमें कॉइन दिखाई नहीं दे रहा था ना, लेकिन जैसे पानी उसमें ऐड किया जाता है तो हमें वहां से कॉइन दिखाई देता है, वहां से कॉइन दिखाई देता है ना बेटा। चलिए तो ऐसे एक्सपेरिमेंट हम याद याद आ रहा है, ऐसा एक्सपेरिमेंट हमने कैरी ऑन किया था। चलिए बेटा हम डेली लाइफ में भी ऐसे महसूस करते हैं, कोई भी ऐसे कोई पानी स्टोरेज करने की जो टंकी होती है उसमें कोई एक छोटा सा कोई ग्लास है या कोई जैसे कि पॉट है वहाँ पे गिर जाता है और बॉटम की तरफ जाता है, तो हमें क्या क्या महसूस होता है कि वो पॉट या कोई ग्लास वो बहुत ही ऊपर है, सरफेस उसका बहुत ही ऊपर की तरफ दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली वो ऊपर होता है क्या, नहीं होता है ना। तो यही हमें यहाँ पे चेंज होते हैं, जैसे यहाँ पे मीडियम हवा माध्यम और पानी माध्यम, ये दो माध्यम को लेकर, जैसे अभी यहाँ पे इसी को लेकर हमें आगे चलना है। तो यहाँ पे देखिए बेटा इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है, कीप अ 5 रुपीज कॉइन इन अ मेटेलिक वेसल, है ना, स्लोली गो अवे फ्रॉम द वेसल। अभी वेसल के बाजू में हमें दूर दूर चलना है, कब तक दूर चलना है, जब तक हमें कॉइन न दिखाई दे तब तक, एंड स्टॉप द प्लेस व्हेन द कॉइन गोस, यस, डिसअपियर, कॉइन दिखना बंद हो जाए तो उसी पॉइंट के ऊपर हमें स्टॉप होना है, एंड कीप द लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द कॉइन, डायरेक्शन ऑफ कॉइन की तरफ देखते ही रहना है, एंड फिल द वाटर विद द वेसल, यस, यू विल बी एबल टू सी द कॉइन, तब हमें कॉइन दिखाई देती है। ड्रॉ द कंक्लूजन हियर, तो कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ करना है, क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, इन द बोथ अबव एक्टिविटी द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स आर द is created due to the change in the direction of the light while coming out of water. The light changes its direction when going from one transparent to another transparent medium. This is called as a refraction of light. This is called as a refraction of light, and our chapter name is a refraction of light. Our chapter name is a refraction of light. Just okay. So we have starts our chapter in new periods, ठीक है। अभी न्यू पीरियड में हम इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा दिस इज इंट्रोडक्शन, वी हैव
recall our knowledge and we हो ready for learning this refraction of light। अभी हम रेडी हो चुके हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने के लिए। ठीक है, घर जाके इसको थोड़ा सा क्या करना है बेटा, याद करना है, इसी एक्सपेरिमेंट को करके देखना है, अपने फ्रेंड के साथ इसको करके देखना है। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना है। और इसके साथ देखिए बेटा, हम अभी दूसरी जो स्लाइड है अभी यहाँ पे जो वीडियो तुम देखते हो, तो इसी वीडियो को देखकर यहाँ पे इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। कल हम अभी दूसरी वाली स्लाइड हम यहाँ पे लर्न करेंगे। ठीक है, दूसरी स्लाइड में हम एक्चुअली इसी चैप्टर में से जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है जिसको हम डिटेल्स में लर्न करना है। तो डिटेल्स में लर्न करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, एक दूसरी एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी कैरी ऑन करेगी, क्यों, जो कि हमें वो कल लर्न करना है। इसके लिए थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली एक एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन करना है। इसके लिए कल एक कोरा कागज, दैट इज अ ड्राइंग पेपर, एक पेंसिल और कुछ पिंस लाने हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू।